So we have a lot of people here, so I guess we'll start. Assalamualaikum everyone, I'm Aruba Mohi, one of the coordinators of this webinar, along with Waiba Liaquat. Today, first off, I'd like to thank all of you for joining us today in this webinar. I'm going to start off by a very brief introduction about IFMSA. I'm sure all of you have heard all about it already, but it's one of the world's oldest and largest student-run organizations, non-governmental of course. It works at local, national, regional, and global levels to bring students together to initiate projects in regards to standing. As you can see, the standing of medical education, professional exchange, research exchange, public health, sexual and reproductive health, and today the two standing committees of public will be presenting today's webinar. That brings me to today's topic, healthy breathing. The reason this webinar seems so crucial to us at this stage was due to the fact that we've been in lockdown for almost a year now. That's left us in seclusion, fear, and grief looming all around us. I used to think that when losing someone dear, our own lives may come to an abrupt halt, but the world around us so harshly moved on as if it were to mock us. But in this pandemic, we've been left devoid of that environment to move on, with our surroundings appearing completely still. We've not only suffered the loss of loved ones, but the loss of jobs, routines, and all sorts of motivation, which I'm sure you may have encountered during your profs, because I know I, for one, surely did. So our webinar today will be divided into 4 topics. Personal grief, consoling others going through grief, finding new meaning in life, and grieving the loss of routine and normalcy. That brings me to introduce today's guest speakers. I'm highly honored to introduce Ma'am Samia. Today we've had a slight change. We were supposed to have Dr. Yusuf presenting today, but they've switched topics due to an emergency, and Ma'am Samia will be presenting today. And she's one of the founding members of Telepsychiatry Pakistan, a final year psychiatry resident, and is trained to be a logotherapist from Viktor Frankl Institute of England, Ireland. She's also specialized in cognitive behavioral therapy, and we're really honored to have her here today. And you have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Can you all hear me okay? Yes, ma'am, we can. Assalamu alaikum. Can you all hear me? Walaikum assalam, ma'am. Yes, we can hear you. That's good. Thank you, Aruba, for your kind introduction. And as you all know, this topic was supposed to be presented by Dr. Yusuf Razain initially, but due to an emergency, he could not be here today, so I had to take over. So since the logical order of this webinar would be that the ins and outs of grief should be explained first, and then we should proceed to how to adjust to it and how to find new meaning in life. So is wajah se I decided that I would start off with this. Okay, so I'm sure every one of you would have experienced in one way or the other, because we as human beings universally experience loss of close relationships at various points and stages of our life, and especially during this last year, we have actually come across death and loss in the form of bereavement much more frequently, and also with a much heightened awareness of it. But yes,
grief, even though it's universal, it's also very individual. So whatever I'm going to say about various aspects of grief, what happens, for example, physically, what happens psychologically, what happens socially and spiritually. The actual experience of every person would be different. You know, I read somewhere that in this context, actually, Gordon Allport, one of the leading psychologists, and one of the founders of a certain school of humanistic psychology, he talks about human beings such that each man is like all other men, each man is like some other men, and each man is like no other man. And if we think about it in the context of grief, each person's grief is like all other person's griefs. Each person's grief is like some other person's grief, and each person's grief is like no other person's grief. So whatever I'm going to say about what happens in grief, we need to think that yes, that would not entitle us to say, yes, I know exactly what's happening to you. You would have come across various phases of grief when you are studying, for example, Kubler-Ross's stages. काफी सारे लोगों ने behavioral sciences की studies में पढ़ी होती है. So that is one familiar model. That's probably why I see grief as the first bullet point over here. Before going to discuss the phases and you would say stages and tasks of grief, what I would like to do is discuss what sorts of feelings can emerge, what sorts of physical reactions, what sorts of thoughts and experiences could emerge in the context of normal grief. Actually, grief, even though it's not a uniquely human experience in all dimensions of it, but there is a uniquely human aspect to it as well. Grief, there are certain patterns and reactions to grief that we share even with animals. But then there are some things which because of being human and because of being generally conscious and aware of who we are and what's happening to us and what lies in the future for us, there is an aspect of grief that is specifically uniquely human. So in terms of feelings, can you all put in chat, what do you think, what kinds of feelings emerge in the context of grief? Yes, guilt is one, numbness is one, loneliness is definitely one. Yes, ग्रीफ के साथ जो सबसे ज्यादा एसोसिएटेड हमें नजर आती है, जो हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, वो तो सैडनेस की फीलिंग है. सिंस यू नो a loss happens, if that loss is to death, we call that bereavement. वो जो bereavement का एक्सपीरियंस, हमें जो उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, जो कुछ हमारे अंदर उसके नतीजे में हो रहा होता है, that is grief. सही. तो फिर grief में जो सबसे prominent
सबसे ये कह लें कि जो बहुत विजिबल किस्म की फीलिंग जो सारे एसोसिएट करते हैं उसके साथ, दैट इज सैडनेस। बिकॉज जाहिर है जब लॉस होता है तो उसके साथ कुदरती बात है कि जो अफसोस, दुख, वो चीफ स्टेज, एक सेंटर स्टेज ले लेता है। और वो क्योंकि सैडनेस की फीलिंग्स उसके साथ वो एक सोशली सैंक्शनड और बहुत एक्सेप्टेबल किस्म की उनकी नेचर भी है, तो इस वजह से यस वो बहुत सामने नजर आती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी फीलिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंगर, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे हम जाके इसके बारे में हम ये बात करने के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए ग्रीफ के कॉन्टेक्स्ट में, जब व्हेन यू आर गोइंग टू कंसोल अनदर ग्रीविंग पर्सन, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ये समझना अहम है कि किस तरह की फीलिंग्स से हम खुद गुजरते हैं जब हम ग्रीव कर रहे होते हैं, और किस तरह की फीलिंग्स से नेचुरली दूसरे लोग गुजर रहे होते हैं। तो एंगर की जो फीलिंग्स हैं वो ग्रीफ के कॉन्टेक्स्ट में किस किस के अगेंस्ट एंगर की फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं, इसके बारे में कोई आइडियाज हैं जहन में? खुद के बारे में, पेट के अगेंस्ट। Yes, and people are sometimes angry. Yes, nature is one way of saying it. People would say people are angry with God about it. People are angry with the deceased as well. कि वो, हालांकि ये समझना बड़ा मुश्किल है कि जाहिर है इंसान कॉग्निटिवली, ज़हनी तौर पर ये समझ रहा होता है कि द पर्सन डिड नॉट वांट टू डाई, वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब ये हो जाता है तो एक गुस्सा अपने अंदर महसूस कर सकते हैं लोग। वो एक चीज है। एक चीज जिसका सामना बतौर डॉक्टर हमें करना पड़ सकता है, वो क्या है कि जो जैसे यहाँ पे लाइबा ने लिखा है ना, ब्लेम, व्हाट हैपेंस इज कि when the person loses a loved one, तो जो गुस्सा है वो कई दफा उस सूरत हाल पर, उस इंसान पर एक नेचुरल रिएक्शन के तौर पर आ रहा होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्टेबल फीलिंग तो नहीं है ना। you do not want to say कि the loved one is, for example, bad for living at that time। तो वो जो एंगर है वो डिस्प्लेस हो जाता है काफी दफा किसकी तरफ, लाइक you go ahead and try to find someone to blame। वो कौन हो सकता है? अगर if this happened in a hospital, जो इमीडिएटली लोग सामने नजर आएंगे वो कौन हो सकते हैं? वो डॉक्टर्स हो सकते हैं। ओके, this doctor did not show up immediately। इस नर्स ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। वो वाला जो सारा का सारा गुस्सा उस सूरत हाल में आ रहा होता है, वो एक एंगर का एक्सप्रेशन इन जनरल, जो एक ग्रीफ के कॉन्टेक्स्ट में एंगर का एक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है। एंड देन यस, अबाउट योर ओन सेल्फ, अपने बारे में गुस्सा, अपने ऊपर गुस्सा, वो फिर काफी दफा डिप्रेशन की शक्ल ले लेता है। आप देख लेते हैं कि कई दफा a depressive disorder starts in the context of grief। काफी दफा हम डिलिबरेट सेल्फ हार्म और सुसाइड को ग्रीफ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होते हैं। That's another। यहाँ गिल्ट का जिक्र किया था किसी ने। ग्रीफ के कॉन्टेक्स्ट में गिल्ट इज अ वेरी वेरी कॉमन फीलिंग, लेकिन ये गिल्ट बिलअमूम किस तरह का होता है कि दिस इज अबाउट किसी तरह से उन सर्कमस्टेंसेस में कुछ और मैंने मुख्तलिफ किया होता, किसी तरह से इसको रोका जा सकता। मैंने ये सही नहीं किया, इस वजह से ऐसे हो गया। ये मैं उस वक्त जल्दी पहुंच जाती, मैं उस वक्त उनको डॉक्टर के ले जाती, मैं उस वक्त मैंने एक दफा दोबारा ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर ली होती। इस तरह की जो सारी की सारी थॉट्स हैं जो कि बेसिकली डेथ के करीब वाले टाइम के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके हवाले से आ रही होती हैं। तो ये वाले ख्याल, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हम इस आइडिया को यूज करेंगे
ये देखने के लिए कि किस पॉइंट पे इंसान को हेल्प लेने की जरूरत हो सकती है, उसको लेने की जरूरत पेश आएगी। अच्छा, एक और चीज जिसका जिक्र आया था वो लोनलीनेस है, स्पेशली जब किसी बहुत क्लोज रिलेशनशिप का लॉस होता है। फॉर एग्जांपल, इफ समवन लूजेस अ स्पाउस, अ सिबलिंग, पेरेंट, जो जिनके साथ आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा शेयर हो रही होती है, जिनके साथ आपका बहुत ज्यादा वक्त गुजर रहा होता है, उनमें से किसी की वफात के बाद एक तन्हाई इंसान एक इमोशनल लेवल पे महसूस कर रहा होता है, बिकॉज ये द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट यू शेयर्ड विद देम वो किसी और के साथ उस तरह का नहीं है। फिर इमोशनल लोनलीनेस के साथ साथ एक सोशल लोनलीनेस भी आ जाती है, बिकॉज इस सूरत हाल में क्योंकि इंसान इतनी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स के साथ कोप कर रहा होता है, तो एक बिहेवियर ये आ जाता है कि आप थोड़ा सोशली विड्रॉन भी हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि आप अपना वक्त थोड़ा तन्हाई में गुजार सकें। तो उसके नतीजे में yes, and if there is no adequate social support around you, तो वो भी एक चीज है जो कंट्रीब्यूट कर सकती है इसके अंदर। और बहुत सारी दूसरी फीलिंग्स में एक फीलिंग थकावट की फीलिंग, फटीग की फीलिंग, बहुत शिद्दत की शुरू में बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। पीपल टेल अस दैट दे डोंट फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ बेड, वो उनके लिए उठना ही मुश्किल हो रहा होता है, एंड इट्स ऑलमोस्ट फिजिकल। फिर one thing that's very commonly associated, एक feeling जो बहुत associated है, वो yearning की feeling है, you just want them around, वो कैफियत मुस्तकिल महसूस होना कि किसी तरह से वो आपके सामने आ जाए, आपको नजर आ जाए, आपका वक्त उनके साथ गुजर सके, और वो फीलिंग बहुत ज्यादा शिद्दत से इंसान अपने अंदर महसूस कर रहा होता है। दूसरी फीलिंग्स जो कि इसके साथ सुनी होंगी, उनमें शॉक है, नमनेस है, एक इमीडिएट जो एक रिस्पॉन्स नहीं आता, इंसान फौरी तौर पर अब उन फीलिंग्स को प्रोसेस करने के काबिल नहीं होता। इंसानों का ये the human mind cannot like handle those overwhelming feelings एकदम all at once. So इस वजह से it's important to take take that in bits and pieces. तो उसकी वजह से जो एक even though on a cognitive level the person is understanding कि the loved one has passed, मगर एक इमोशनल लेवल पे उसका डिनायल चल रहा होता है। एक तरफ वो फ्यूनरल की अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ अपने दिल में महसूस कर रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, अब तक ऐसा नहीं हुआ। कई दफा वो खुद अपने प्यारे की तदफीन करके आते हैं, उसके बावजूद कोई चीज ऐसी होती है जिसके बारे में वो उसी वक्त उनको फोन करके इत्तला देना चाहते हैं। इस तरह लेकिन ये सारे के सारे ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये सब की सब चीजें, ये सब की सब फीलिंग्स इस कॉन्टेक्स्ट में एक नॉर्मल, एक बिल्कुल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। all of this is a natural reaction to to uh, to the overwhelming loss. Physical sensations में बहुत सारे लोग how people would contact you, I mean you are medical students, some of you may be doctors already, तो जिस तरीके से आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में देखने का मौका मिलेगा, वो मुख्तलिफ तरह की फिजिकल फीलिंग्स होंगी। अब बहुत सारी फिजिकल सेंसेशंस, समवन वुड कम टू यू विद फॉर एग्जांपल finding it difficult to tolerate noise, someone would come with a chest discomfort, someone would present with shortness of breath, someone would present with tightness in throat, किसी को एक स्टमक में डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा होगा, ड्राई माउथ होगा, लैक ऑफ एनर्जी। इस तरह की चीजों के साथ पीपल कुड प्रेजेंट टू यू, एंड समटाइम्स आफ्टर योर एग्जामिनेशन इन एवरीथिंग यू वुड नॉट बी एबल टू सी, एक कोई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फिजिकल कॉज नहीं नजर आएगा। तो एट दैट टाइम इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू थिंक के there could be a social diagnosis as well, because medical sociology हमें ये बताती है कि
इवन दो people have certain symptoms काफी अरसे से चल रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी हेल्प सीकिंग है वो मुख्तलिफ तरीकों से इफेक्ट होती है. समटाइम्स people first go to seek help जब कि वो किसी ना किसी तरह के ओवरवेलमिंग पर्सनल सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे होते हैं. तो ग्रीफ ऑब्वियसली उनमें से एक बहुत बड़ी मेजर चीज है. जैसे फिर क्योंकि ग्रीफ के कॉन्टेक्स्ट में एंजाइटी का आना कोई अजीबोगरीब चीज नहीं है. सो a lot of these symptoms can be attributable to anxiety as well. क्यों भला? क्योंकि कई दफा बहुत क्लोज लव्ड वन का लॉस जो है वो बहुत शिद्दत से हेल्पलेसनेस ट्रिगर करता है. आपको एकदम महसूस होता है कि आप बहुत सारी चीजें जिंदगी में अपनी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाज़ चीजों के सामने आपका बस नहीं चलता. तो उसके नतीजे में इंसान को बहुत घबराहट परेशानी हो सकती है. एक चीज ये भी, लेकिन इससे ज्यादा द डेथ ऑफ your anyone close to you, anyone known to you, brings your own mortality into your awareness. क्योंकि आम हालात में हम अपनी डेथ के बारे में, अपनी मोर्टेलिटी के बारे में, that we are also going to leave this world at some point, ये हमारे जहन में नहीं होता हर वक्त. तो उसका एकदम सामने आ जाना, अपनी डेथ के बारे में सोचने लग जाना भी एक incredibly anxiety provoking सूरत हाल है. I'm not saying that this is abnormal, but yes, this is something that people experience. A lot of people experience in this context. तो उसके साथ ये बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आप देख सकते हैं. अच्छा हाँ, फीलिंग्स के तनाजुर में एक बात जो कहना इतना आसान नहीं है, बिकॉज वो डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है टुवर्ड्स द डिसीज्ड कि sometimes people feel relief की feeling, relaxation की feeling after someone close has passed, especially अगर they are battling something chronic या something painful, उनके लिए difficult, कोई ऐसी चीज जिसमें जो केयरर है वो काफी अरसे से उनका ख्याल रख रहे हैं और उन्हें मुश्किल में, तकलीफ में, पेन में देख रहे हैं, खुद मुश्किल में, तकलीफ में, पेन में है उसके नतीजे में. तो वो जो रिलीफ की फीलिंग है वो फिर आगे चल के अपने तौर पे एक गिल्ट की फीलिंग इंड्यूस कर देती है कि why am I feeling that way. तो लेकिन बहरहाल अगेन this is a normal response. इसमें कोई अजीबोगरीब चीज तो नहीं है. हाँ, अब फिजिकल एंड पे और जो क्या कुछ हो सकता है, एक डीपर्सनलाइजेशन की फीलिंग, पीपल डू रिपोर्ट दैट, कि जैसे अपने बारे में ये महसूस होना कि मैं रियल नहीं हूँ, आसपास की चीजें रियल नहीं महसूस हो रही. ये भी एक बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है जो देखा जाता है. अच्छा, अब क्योंकि देयर आर सम थिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीफ जो कि साइकियाट्रिक सिम्टम्स जैसी लगती हैं, तो वो काफी अगर आपको थोड़ा बहुत इल्म हो तो वो काफी सारी एंजाइटी और परेशानी की वजह बन जाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, a lot of people in the initial few weeks experience वो उन्हें अपना लव्ड वन दिखाई दे या उनकी कोई आवाज सुनाई दे. सो दैट इज वो जो एक हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंस लगेगा, बिकॉज यस यू नो कि वो वहां नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस हो रहा है. तो इसके बारे में भी ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी साइकोपैथोलॉजी. फिर एक सेंस ऑफ प्रेजेंस, a lot of people report that कि yes they feel that they are being watched by their loved one, या वो आसपास हैं, ये वाली फीलिंग भी ये लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें चली जाती हैं. बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं इंसान को उनके बारे में. ये कई एक चीजें हैं जो बेसिकली कंप्राइज करती हैं ग्रीफ को. बिहेवियर के बारे से आपने देखा होगा कि कई चीजें वो डिप्रेसिव नजर आ रही होती हैं आपको. द पर्सन जो सर्वाइवर्स हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ग्रीफ को, दे आर एक्सपीरियंसिंग चेंजेस इन देयर स्लीप, देयर एपेटाइट. वो आपको नजर आएगा, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी कंसंट्रेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी. काफी दफा आपको लगेगा कि आप एब्सेंट माइंडेडली कोई काम कर रहे हैं. मैं यहाँ क्यों आई थी, क्या करना था मैंने यहाँ पे, कोई चीज रखी और जहन से निकल गया. या जब आप वापस अपनी रूटीन की एक्टिविटीज की तरफ आना चाहें, पढ़ाई कर रहे हो, ये सारी चीजें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि
कैसे मैं उस पर ध्यान दूं, ये वाली चीज, ये डिफिकल्ट, क्योंकि ओवरवेलमिंग फीलिंग्स के साथ इंसान डील कर रहा होता है, तो कई दफा ये मुश्किल लगता है कि डे इन एंड डे आउट लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जा सके। तो वो जो उसके लिए अपने अंदर एक इमोशनल एनर्जी नहीं महसूस होती, तो उसके नतीजे में भी एक सोशल विड्रॉल आ जाता है, रेस्टलेसनेस बहुत सारी इसके साथ आ सकती है, सर्चिंग आ सकती है। अच्छा, आगे ग्रीफ को इफेक्ट करने वाली जो चीजें हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियरल जो चीज है वो है अवॉइडेंस ऑफ एनी रिमाइंडर्स of the passing of the person. For example, not going to the gravesite, बिल्कुल भी नहीं, उसको मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज नॉर्मल इन एवरी केस, मगर ये एक चीज है जो कि परसिस्टेंटली अवॉइड करना वुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू प्रोसेस ग्रीफ। वो हो सकता है, या जैसे जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं, सारा का सारा जो आप मुकम्मल तौर पर उन्हीं को यूज कर रहे हैं, या उनको वो जिस तरह थी बिल्कुल उस तरह प्रिजर्व करके रखना फॉर अ मच मोर प्रोलॉन्ग पीरियड। अगर ये चल रहा हो तो शायद ये एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन इनिशियली कम से कम ये वाली चीजें बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये सारे तो एक जो है ना कि हम जनरली जो ट्रीटमेंट के फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको देख पाने में कामयाब हुए थोड़ा किसी हद तक। तो बिफोर वी प्रोसीड कि आगे क्या किया जा सकता है इस बारे में, तो मेरा ख्याल है इससे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर इस पेंडेमिक के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें किस तरह से ग्रीफ का एक्सपीरियंस चेंज हुआ है। सो any ideas that you want to share about that? Not being able to visit as much, और फिर उसको बाद में उस पर गिल्ट महसूस होना, बिल्कुल। yes, sometimes death can be very sudden and the person cannot find any time to process that. ये बहुत important है, जो not being able to go see the person, this has obviously इसके काफी सारे consequences हैं short term में, long term में। उसके अलावा और क्या चीजें आ सकती हैं? No contact is very important. Yes, losing multiple people. वो ये जो पेंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में one thing that we are seeing is कि day in and day out you are hearing about people, ठीक है? उनमें से कुछ लोगों के साथ आपका बहुत क्लोज इमोशनल ताल्लुक हो सकता है, और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फॉर एग्जांपल उन लोगों के साथ क्लोज ताल्लुक है जिनको आप जानते हैं। आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे पढ़ेंगे, आप डॉक्टर्स की कम्युनिटी में पढ़ेंगे, और फिर जाहिर है हम में से हर एक ने खुद अपने तौर पर भी ये एक्सपीरियंस किया किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी तरह। तो yes, losing several people close to you is one big reason why these deaths are very difficult to deal with, much more difficult to deal with. डिस्टेंस वाली बात बहुत इस कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इसके ऊपर तो बहुत सारी रिसर्च मौजूद है कि इफ डेथ डज नॉट अकर इन फ्रंट ऑफ यू, यानी आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आपने बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं देखा, आप फ्यूनरल राइट्स में किसी तरह शामिल नहीं हो पाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो एक शॉक एंड नमनेस वाली जो इनिशियल फीलिंग्स होती हैं उनसे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक्सपीरियंस हम कॉमनली सुन रहे हैं कि ये बात कबूल करना बहुत मुश्किल है कि द पर्सन इज नाउ इज नो लॉन्गर अराउंड। तो वो एक चीज, फिर एक चीज फियर भी हो सकता है, खौफ हो सकता है कि what if I end up catching coronavirus. It's not necessary कि जो भी आपका
लॉस हुआ, द पर्सन हु पास्ड, इट्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। लेकिन ये कि फ्यूनरल राइट्स पे ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाइटन होती है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, तो वो भी एक वजह बन जाती है। लेकिन फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट डिजीज वो एक रीजन है जो कि हाइटन कर देता है परेशानी को। अब पेंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में जो डेथ्स हैं उनके साथ हमारी सोसाइटी में एक चीज जो एसोसिएटेड है, दैट इज स्टिग्मा। आई डोंट नो कि मुझे बहुत तफसील से नहीं पता कि उसकी सोशियोलॉजिकल वजूहत क्या हैं, लेकिन हम ये बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि the people who contract कोरोना वायरस, जैसे तो ये कहना दूसरों से शेयर करना काफी मुश्किल है, काफी ज्यादा। मे बी नॉट इन सम कम्युनिटीज, लेकिन कुछ में काफी ज्यादा है ये चीज। लोग नहीं कहना चाहते, नहीं सुनना चाहते कि किसी को कोरोना वायरस ने इफेक्ट किया था। तो वो भी काफी मुश्किल बना देता है बात कर सकना सर्कमस्टांसेस के बारे में, क्या हुआ था उस वक्त। और अगर जो सर्वाइवर है वो खुद डिजीज से डील कर रहा हो तो उसके लिए ये नामुमकिन हो जाता है कि वो फ्यूनरल राइट्स में शामिल हो सके बिकॉज ऑफ क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स। दैट इज अनदर थिंग। जहाँ सडन डेथ एक बहुत बहुत ज्यादा परेशान कुन चीज है कि सोचने का मौका ही नहीं मिले कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो उसी तरह से एक दूसरी चीज जो कि गुजर रही होती है वो ये है कि someone is sick and they are getting sicker by the day, and then in anticipation you are already in that phase of grief। वो पहले से शुरू हो जाए, एंटिसिपेटरी ग्रीफ शुरू हो जाए। ये भी एक चीज है जो इस कॉन्टेक्स्ट में काफी प्रोमिनेंटली नजर आती है। as soon as a loved one becomes hospitalized because of a lot of notions that are prevalent, उनकी वजह से उसी वक्त से पहले से दिल में जो खदशा और खौफ, उसके साथ साथ एक जो दुख, परेशानी और ये ख्याल के इट्स देयर टाइम, ये पहले से शुरू हो जाता है। और समटाइम्स ये जो एंटिसिपेटरी ग्रीफ है, इट मेक्स it very difficult for the person to kind of interact with other people, जो एक उस पॉइंट पे उस सोशल सपोर्ट को जो कि ग्रीफ में मदद देती है बंदे को, उसको एनलिस्ट करना मुश्किल होता है। तो ये भी एक वजह है। फिर शुरू के वक्त में काफी दफा ऐसा हुआ कि अब तो किसी हद तक सूरत हाल चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस, लेकिन इन द फर्स्ट वेव ऑफ द पेंडेमिक ये हुआ था कि people did not get the bodies of their loved ones उस तरीके से, जिस तरीके से हमारे यहाँ कल्चरली एक जो ग्रीफ से गुजरने के तरीके हैं, मोर्निंग के तरीके हैं, उनमें ये शामिल है कि आप देखें वो नहीं हो पाया। तदफीन फॉर एग्जांपल एक डेजिग्नेटेड टीम कर रही थी, तो उसकी वजह से एक एम्बिग्विटी भी रह गई जहन में, क्या वाकई ये ऐसा हुआ है या नहीं, क्या वाकई जिसको बेरी किया है वो मेरे लव्ड वन ही थे या कोई और थे। ये वाली जो चीज है ये भी आगे जाके फिर प्रोलॉन्ग कर देती है ग्रीफ की प्रोसेसिंग को। एंड देन यस, एक ख्याल जो जहन में बहुत चलता रहता है वो ये है कि ये डेथ जो है इसको प्रिवेंट किया जा सकता था। जाहिर है इसके ऊपर बात भी बहुत ज्यादा होती है, वो समझाने के कॉन्टेक्स्ट में होती है कि हाँ जी आपकी बहुत सारी एहतियात के नतीजे में कोई और नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा वायरस को। लेकिन इस बात की जो एक डाउन साइड है वो ये है कि द सर्वाइवर्स वुड कीप ब्लेमिंग देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल if you are a medical student or a doctor who first became infected और फिर आपके घर में किसी और को हो गया और अल्लाह ना करे उनकी जान चली गई, तो ये वाली जो चीज है ये बहुत ज्यादा सारा गिल्ट आगे ट्रिगर करेगी। जैसे अभी लाइबा ने लिखा भी है कि ये fear of catching the virus and transferring to your loved ones, ये एक बहुत बहुत ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल इंसान के लिए हर सूरत हाल में रहती है। हेल्थ केयर स्टाफ के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बिलखसूस ये वाली चीज बहुत बड़ी परेशानी इस सूरत हाल में बनी है। तो इस लिहाज से कोविड में होने वाला जो ग्रीफ है वो एक ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा हमारी अवेयरनेस में रहा। हमने ये भी देखा कि in general, yes, we sometimes think about our own death,
हम अपनी जिंदगी की अनसर्टनिटी के बारे में कभी ना कभी सोचते भी हैं, लेकिन इस सूरत हाल में इट वाज मच मच मोर हाइटेंड, बिकॉज वो हमारी जो द लाइफ एज वी न्यू इट वो बड़ी बुरी तरह से तब्दील हो गई। बहुत बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस टू यू नो टू फील बेटर, टू थिंक कि ये हमारी जिंदगी का मकसद है, वो हमारे से छिन गई। तो वो एक एडेड जो लॉस है, कंपाउंडेड लॉस, वो इस कॉन्टेक्स्ट में होने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो इस तरह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और डिफरेंट हुआ, तो फिर क्या हम कर सकते हैं, कैसे कोप कर सकते हैं विद द लॉस ऑफ अ लव्ड वन? हेल्थी ग्रीफ कैसा होगा? अच्छा, इस बारे में एक बात जो समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि we sometimes tend to see grief as a very very passive thing, जिससे ना इंसान को गुजरना होता है। उसमें बहुत सारी चीजों का जो हमारी एक्टिव कोशिशों का रोल नहीं होता। एक तरीका ये है इसको देखने का। दूसरा जो है वो क्योंकि बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद इमोशंस एंड एवरीथिंग, दूसरी जो चीज होती है वो एक काइंड ऑफ अ प्रेशर ऑन द पर्सन ग्रीविंग टू एक्ट नॉर्मली एज सून एज पॉसिबल। दूसरी एंड वो वाली है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है हमारे लिए एक जो बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है वो ये हो सकती है कि we see कि yes, time is a major factor. In time it would be possible to kind of adapt to life without loved one. ये कहना गलत होगा कि आप ग्रीफ से गुजर जाएंगे, आपके लिए वो जो लॉस है वो उसका पेन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स losing a loved one is a lifetime thing. ये जाता नहीं है। ये सिर्फ ये होता है कि इंसान को उसके साथ बेहतर तौर पर रहना आ जाता है। जहां शुरू में सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा होता है कि उदासी और परेशानी और घबराहट, गुस्सा, वो वाली सारी इमोशंस होती हैं। लॉस लूम्स लार्ज, वही ज्यादातर दिखाई दे रहा होता है। वहां इस एडाप्टिंग के प्रोसेस का नतीजा ये होता है कि एट लाइक आफ्टर सम टाइम ये मुमकिन हो पाता है कि आप जो अच्छी यादें हैं, जो आपकी खुशगवार मेमोरीज हैं, उनके बारे में सोच सकें और उनके ऊपर मुस्कुरा भी सकें। वो सिर्फ और सिर्फ लॉस की फीलिंग्स इवोक ना कर रही हूँ, वो वाला प्लेजर भी इवोक कर रही हूँ। ये मुमकिन हो पाए कि आप उस जिंदगी को सेलिब्रेट कर सकें डिस्पाइट दैट पर्सन नॉट बीइंग अराउंड। आप उनकी जिंदगी का इम्पैक्ट महसूस कर सकें, चाहे वो अब फिजिकली आपके पास मौजूद नहीं है। तो basically this is the end point of all the methods and techniques of coping with the loss of a loved one. एक मिसकॉन्सेप्शन जो इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमिलियर जो है वो कुबलर-रॉस की स्टेजेस हैं। एक कॉन्टेक्स्ट जो आ जाता है, कुबलर-रॉस की स्टेजेस कोई गिनवा देगा कि कौन कौन सी हैं? क्योंकि बिहेवियरल साइंसेस में तो दैट्स वन कॉन्सेप्ट जो कि काफी फेमिलियर है। So that starts with denial, then anger and bargaining, फिर डिप्रेशन और फाइनली एक्सेप्टेंस। ये इसके बारे में जो मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि ये इसी तरह से लीनियर होती हैं, ऑर्डरली होती हैं। इंसान एक स्टेज से गुजरता है, फिर वो अगली में जाता है, फिर उससे अगली में जाता है, और फिर अल्टीमेटली जाके वो उसको एक्सेप्ट करता है। इन रियलिटी दिस इज नॉट लाइक दैट। ये इतने नीट एंड क्लीन क्लियर कट नहीं है।
what happens is कि इंसान एक ही दिन में एक और समटाइम्स एक ही वक्त में बैक एंड फोर्थ कर रहा होता है एक स्टेज से दूसरी के अंदर। जो जिस भी तरह से हमारा माइंड जिस भी तरह से केपेबल हो इन सदमों को बर्दाश्त कर पाने का, उस तरीके से इनके साथ डील कर रहा होता है। तो ये इस तरह से सिस्टेमिक और ऑर्डरली तरीके से नहीं चल रही होती। तो इस वजह से अगर किसी वक्त ये लगे कि हाँ अब मुझे लगता है कि मेरे लिए ये मुमकिन हो गया है कि मैं इस लॉस को समझूं और इसके से मैंने जो कुछ सीखा है उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई करूं, लेकिन दूसरी तरफ ओवरवेलमिंगली दोबारा गुस्सा आना शुरू हो जाए या ये ख्याल पैदा होना शुरू हो जाए कि नहीं ये यूं कर लिया होता तो शायद ये डिफरेंट होता ऐसे। तो ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं होगी। दिस इज नॉर्मल, दिस इज ह्यूमन। नाउ अगर यहाँ से अच्छा आई थिंक पहले सेशन का वक्त मुकम्मल हो गया है, तो अगर आप लोग चाहें तो अभी ब्रेक ले सकते हैं और जो ब्रेक ले सकते हैं उनको किया जा सकता है जैसे भी। जी मैम, we are going to take a 10-minute break. उससे पहले I would like to say कि like I wanted to recite Surah Fatiha to pay our condolences to the people who have passed away. Allah yarhamu, Allah grant them Jannat al-Firdaus. Thank you. Jazakallah khair for this gesture. This was very, this felt very personal. Okay, before going to how to help another grieving person, I think I should cover a little bit of what was left from the previous topic and tie that in with this. So we were basically talking about Kubler-Ross's stages and the idea that passing through grief is wholly passive, or that it is like you have to go through stages like that. And then we also saw that for whatever reason, several people want the grieving person to just start acting normally as soon as possible. So एक साइड पे ये है कि बिल्कुल भी ये तो जो होगा वो आप वक्त के धारे पर हैं, चीजें उसी तरह से आगे चलती चली जाएंगी। और दूसरी तरफ ये होता है कि भाई आप अब तक इससे स्नैप आउट नहीं किए हैं। ये वाली दो एक्सट्रीम्स हैं। तो एक जो बैलेंस्ड रवैया हो सकता है वो ये है कि ये वक्त का रोल है इस काबिल बनाने में कि हम अडाप्ट कर सकें उस बहुत बड़ी तब्दीली के साथ जो कि ज़िंदगी में आ गई है इमोशनल लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें एक्टिव कोशिश करने की ज़रूरत भी पेश आएगी। बेसिकली ग्रीफ काउंसलिंग में एक जो जनरल आइडिया है as to how to adapt to grief, उसमें tasks आते हैं। मतलब you could say कि there are certain tasks जो कि हमने बतौर grieving person जो कि अंजाम देने होंगे, और जाहिर है जब हम एक दूसरे ग्रीविंग पर्सन की मदद करने की कोशिश कर रहे होंगे तो हमने उनके लिए उन टास्क्स का अंजाम देना फैसिलिटेट करना होगा। तो वो क्या है? वो द फर्स्ट वन इज बीइंग एबल टू एक्सेप्ट रियलिटी। है ना, हमने बात की, हमने डिनायल की बात की, हमने शॉक एंड नमनेस की बात की। तो बिल्कुल पहली चीज जो कि करने की जरूरत पेश आ रही होती है वो ये मानना है कि ये लॉस जो है वो रियल है। हमने देखा था कि बिहेवियरल लेवल पर काफी दफा एक या ये हो जाता है कि अवॉइडेंस आ जाए बिल्कुल ऑफ एनी रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स डेथ। कब्र पर नहीं जाना, उनके
कोई किसी से ऐसी बात नहीं करनी जो कि उनकी याद दिला रही हो, उस वफात की याद दिला रही हो। या दूसरी तरफ जैसे हमने उस की बात की थी कि लाइक गोइंग अहेड एंड प्रिजर्विंग एवरीथिंग जस्ट द वे इट वाज, कि वो जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं उसको उसी तरह बिल्कुल रहने देना, उसको जो उनका कमरा है उसको बिल्कुल उसी तरह रहने देना। ये वाली जो चीजें हैं ये कई दफा इंडिकेट कर रही होती हैं कि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो द फर्स्ट थिंग जो कि हमें खुद अपने लिए करने की ज़रूरत पेश आएगी और हमें दूसरों को उसमें हेल्प देने की ज़रूरत पेश आएगी, वो ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इन टास्क को अंजाम दिया जा सके। एक चीज़ जो इसमें बहुत मददगार हो सकती है हमारे अपने लिए भी, और अगर हम किसी और को मदद देने की कोशिश कर रहे हो वो क्या होगी, वो ये होगा कि हम इस बारे में बात कर सकें। ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। हमारी हमारी जो नॉर्मल मॉर्निंग के रिचुअल्स हैं वो इस बात को अलाउ करते हैं कि हम बैठें और जैसे डेथ के सर्कमस्टेंसेस के बारे में क्या कुछ हुआ था उस बारे में बात कर सकें। उसकी उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बिकॉज वो जब हम उस बारे में बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि उन सर्कमस्टेंसेस को अपने जहन में दोबारा देख रहे होते हैं, जो कुछ हुआ था उसको सोच रहे होते हैं, और वो हमें जो रियलिटी के साथ लाइक कमिंग टू टर्म्स विद रियलिटी वो हमारे लिए उसके नतीजे में मुमकिन हो पाती है। लेकिन अब करंट सूरत हाल में ये भी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। ये जो नॉर्मली फ्यूनरल्स के लिए घर में जमा होना वो सब करना बहुत मुश्किल हो गया है। प्लस जो एक जनरल कल्चरल शिफ्ट के साथ भी एक ये चीज आ गई है कि लाइक पीपल डोंट ऑलवेज हैव टाइम कि वो बैठें और वो सारी की सारी चीजें सुने। तो हमारे लिए जब हम खुद इससे गुजर रहे हों मददगार हो सकता है कि द पीपल वी लव एंड ट्रस्ट, जिनके साथ हमारा एक क्लोज इमोशनल ताल्लुक है, अगर हम उनसे बात कर सकें about the experience, about what happened, how it happened, how we felt about it, वो जो सारी की सारी एक्सप्रेशन है वो हमें भी मदद दे सकती है। और अगर हम किसी दूसरे को इसके लिए एक एम्पैथिकली लिसनिंग ईयर दे सकें, वो पेशेंट हो सकता है, वो दोस्त हो सकते हैं, वो हमारे बड़े हो सकते हैं, इवन हमारे छोटे हो सकते हैं, उनको एक्सप्रेस करने का मौका दें, उनकी सुने। क्योंकि बहुत दफा जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो ये कह देते हैं कि हमें तो पता है, लाइक आपकी इवन क्लोज फैमिली मेंबर्स वुड समटाइम्स से यस आई नो दैट्स व्हाट हैपेंड, तो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट इट। तो किसी का लिसनिंग ईयर, एम्पैथिकली लिसनिंग ईयर मिल जाना बहुत मददगार चीज हो सकती है। खुद अपने लिए हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम इस बारे में लिखें, या अगर कोई किसी तरीके से आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो सकता है, सम पीपल पेंट, ड्रॉ, उनको उस तरीके से मदद हो सकती है इन एक्सप्रेसिंग। हमारे यहाँ एक जो कल्चरल तासुर है वो ये है कि ये सब करना लाइक एक्सप्रेस करना इमोशंस को, जो जो भी अपना दुख उसके बारे में बात करना, ये किसी तरह से नाशुक्री को रिफ्लेक्ट करता है। ये बात काफी दफा मुझे मेरे पेशेंट से सुनने को मिलती है कि लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल ये ना करो, इससे तकलीफ पहुंचती है मुर्दे को, या इस तरह की चीजें जो कि बहुत अनहेल्पफुल साबित होता है पर्सन, उस इंसान के लिए, उसके लिए उन सारी चीज़ों को अंदर ही रखना बहुत सारी परेशानियों और तकलीफ़ों की, फिजिकल सिम्टम्स की, डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। So this is one thing for our own self and for others to accept reality. One thing that would really facilitate it is being able to express it in one way or the other. जाहिर है इसके साथ जो रिलेटेड दूसरी चीज है वो ये है कि ये being able to process the pain, क्योंकि रियलिटी की जब रियलिटी हिट करती है, once that shock and numbness period is over, तो लॉस जो है बहुत बहुत प्रोमिनेंटली सामने आता है।
तब जो पेन है वो खुल के इंसान को उसका अंदाजा होता है कि ये कितनी शिद्दत का है. people describe this as being drowned. ये एक ओवरवेलमिंग किस्म की सूरत हाल है. ऑब्वियसली अब इसमें हम खुद क्या कर सकते हैं for being able to perform this task, to help ourselves adapt to grief. उसमें जिस हद तक हमारे लिए मुमकिन हो हम अपना जो अपनी, और ये फिर हर डायमेंशन में हमें हमारा ख्याल रखने की तरफ कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत पेश आएगी. ये मुश्किल है कि जब इंसान बहुत उदास हो, बहुत घबराया हुआ हो, तो वो अपने खाने पीने के बारे में सोच सके, अपनी रूटीन की तरफ किसी हद तक जाने की तरफ सोच सके. लेकिन ये बिल्कुल पहले जो कदम है वो इस तरह से इन एंड्स पे डिस्पाइट नॉट वांटिंग इट कोशिश करके अपना ख्याल रख सकना इस सूरत हाल में फिजिकल लेवल. फिर जैसे मैंने उसके बारे में बात की, उसकी एक्सप्रेशन की बात की, या उन चीज़ों से आई मीन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, वहाँ फिर उस पेन के साथ डील करने का एक तरीका ये है कि जो भी हमारे पास हमारे लव्ड वंस के रिमाइंडर्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उनको इकट्ठे जो भी सर्वाइवर्स हैं वो मिल के उनको देख के उनके बारे में बात करके ग्रेजुअली जो हम उसका कुछ पार्ट, कल्चरली हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि उसका कुछ पार्ट दे देते हैं, कुछ खुद यूज करते हैं. वो वाली जो टास्क्स हैं उसको अंजाम देना ग्रेजुअली शुरू करें. कोशिश ये करें कि इवन दो इट्स डिफिकल्ट कि उन सारे रिमाइंडर्स के सामने बंदा ना आए, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ एक्सपोज हो. सही. अब उसमें जब फीलिंग्स आएंगी, हमने देखा गिल्ट आता है, हमने देखा एंगर आता है, तो एक ट्रस्टिंग लिसनर के साथ उस बारे में बात कर पाना, ये समझते हुए कि ये नॉर्मल है, ये ह्यूमन है. हम अपने एंगर के बारे में गिल्टी होने की बजाय उसके बारे में बात कर सकें, उसके बारे में लिख सकें, उसको एक्सप्रेस कर सकें किसी तरह, तो ये मुमकिन होगा कि उसमें से हम ग्रेजुअली गुजर पाएं, अपनी कैफियत को बेहतर तौर पर समझ पाएं. यही चीज हमें एक दूसरे इंसान के लिए भी फैसिलिटेट करनी होगी. हम काफी दफा सोशली क्या होता है, बिल्कुल प्रीची हो जाते हैं हम कि अगर कोई जो है ना वो गुस्से का इजहार कर रहा है तो एकदम उसको करेक्ट करने में लगते हैं जो कि ऑब्वियसली हेल्पफुल नहीं है. अगर हम इसके बारे में समझ पाए हैं कि ये इंसानों का इस तरह की सूरत हाल का नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो जो हमारा फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें उस में कैसे बिहेव करना चाहिए, वो एक लिसनिंग with a wish to understand, with a wish to empathize होना चाहिए ना. तो फिर जाहिर है तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो है the person needs to adjust to the life without that loved one being present. और वो एडजस्टमेंट जो होती है वो हर लेवल पे होती है. वो एडजस्टमेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है. बिल्कुल प्रैक्टिकल इस सेंस में हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु पास्ड अवे, वो मेरे जो सारे डॉक्यूमेंटेशन वाले काम हैं, जो मेरे फॉर एग्जांपल बैंकिंग वाले काम हैं, मेरी बहुत सारी छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग वाले, बड़े डिसीजन मेकिंग वाले काम वो मेरे लिए कर देते थे. तो अब ये जरूरत पेश आएगी कि ये काम मुझे खुद करने पड़ेंगे. ये मुझे अब किसी ना किसी तरह से मुझे ये सीखना पड़ेगा कि ये मैं कैसे करूं. तो ये इस तरह से ये बिल्कुल ही एक्सटर्नल और बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो सकती है, लेकिन बहुत सारी इंटरनल चीजें, फॉर एग्जांपल इफ वी लूज अ क्लोज फ्रेंड, जो आपके आपके वो कॉन्फाइडिंग रिलेशनशिप हैं, जिनसे आप सारी बातें करते हैं, वो नहीं है, तो इमोशनल लेवल पर
वो एक बहुत बड़ा वॉइड होगा, बहुत बड़ी लोनलीनेस होगी। तो ये, और फिर इंसान ये गिल्ट महसूस कर सकता है कि ये कैसे करूं मैं कि किसी और को वो वाली जगह दूं, कि मैं उस तरह से अपने दिल की बात किसी और से करूं जैसे मैं मेरी फ्रेंड के साथ करती थी। ये एक तरह से उनको डिसऑनर करना होगा। ये वाली जो चीज है, हमें हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि द आइडिया इज नॉट टू रिप्लेस द पर्सन। रिप्लेसमेंट तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक 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 बिल्कुल यूनिक इंसान है, और जो हमारा और उनका जो ताल्लुक है बतौर टू यूनिक इंडिविजुअल्स, वो ताल्लुक भी यूनिक है। उसको रिप्लेस तो इस सेंस में नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मुमकिन है कि आप जो आपके आसपास दूसरे लोग मौजूद हैं उनके साथ एक अलग तरह का जो ताल्लुक है उसको इस्टेब्लिश होने दें, ताकि किसी ना किसी लेवल पर वो जो एक इमोशनल खला है उसको पुर किया जा सके। क्योंकि और जाहिर है यही वाली चीज हमें हमें दूसरों के लिए भी फैसिलिटेट करने की जरूरत पेश आएगी, कि वो जो एक इमोशनल लेवल पे बहुत लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, वहां पे उनके लिए होना, उनको वो एक जो एक इमोशनल माहौल है वो वाला प्रोवाइड करना, दैट इज समथिंग जो कि हम कर सकते हैं बतौर एक हेल्पर, एक हेल्पिंग प्रोफेशनल के तौर पर, बतौर डॉक्टर भी। ये एक चीज है जो कि हमारे लिए मुमकिन है कि हम कोशिश करके वो जो एक सपोर्ट है वो प्रोवाइड करें। और ऑन अ मोर प्रैक्टिकल लेवल फॉर अनदर पर्सन हम क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल जो कंक्रीट टास्क हैं जो सामने आ जाते हैं, फर्ज करें कि अब मुझे इस चीज की जरूरत है कि कोई मुझे ड्राइव करके ले जाए, या कोई खाना बना दे, इस तरह की के जो रोजमर्रा काम है, बजाय ये कि हम उनसे पूछें कि आपके लिए क्या करें, हम अगर नीड्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इन चीजों में उनकी जरूरत है, तो हम उनसे पूछें कि क्या ये पर्टिकुलर काम मैं आपको कर दूं। क्योंकि अगर एक इंसान पहले से ओवरवेल्म्ड है और आप उसको ये सिर्फ ये कह पाए कि मैं मेरी आपको जिस तरह की भी मदद चाहिए वो आपके लिए दस्तयाब है, तो वो शायद ये सोच ही ना पाए, अपने जहन में ये तय ही ना कर पाए कि उन्हें किस चीज में आपकी मदद की जरूरत है। तो अगर हम कंक्रीट टास्क आइडेंटिफाई करके उसमें उनसे पूछ सकें कि क्या ये मैं आपके लिए कर दूं, तो वो एक हेल्प हो सकती है in this process of adjustment. And then there is a third and very important thing, on a spiritual level भी हमें एक एडजस्टमेंट की जरूरत होती है विदाउट अ लव्ड वन। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हमारे हमारे बिलीफ्स हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, दोज आर शुक इन द फेस ऑफ डेथ ऑफ समवन वेरी वेरी क्लोज टू अस। उसके नतीजे में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, क्या ये वाकई इसी तरह से है? तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये एक नॉर्मल और एक ऐसी नॉर्मल चीज है जो जिसमें पोटेंशियल मौजूद है कि वो आपको जहनी तौर पर ग्रो करने में मदद दे सके। तो जब ये वाले सवाल पैदा होते हैं तो उनको समझने के लिए गोइंग टू समवन जिस पे आपको भरोसा है, वो बुक्स हो सकती हैं, वो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वो बड़े हो सकते हैं जिनके जिनके विजडम पे भरोसा किया जा सकता है, उनकी तरफ जाना ये इन टास्क को के साथ एडजस्ट करने में मदद दे सकेगा। लास्ट चीज क्या है कि चौथा टास्क जो ग्रीविंग का है वो है अब तो जाहिर है आपने जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाए, उस पेन के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं इन द फेस ऑफ ग्रीफ। लेकिन ये तो वो सब चीजें हैं जो हमारे एंड पे हमारे अंदर चल रही हैं। जो हम द ग्रीविंग पर्सन, वो इन तीनों चीजों का ताल्लुक ग्रीविंग पर्सन के साथ है। नाउ व्हाट अबाउट द पर्सन हु वाज लॉस्ट? अब वो नहीं है उनको, लेकिन हम ये तो नहीं करते ना, जब हमारा कोई लव्ड वन खो जाता है तो हम ये तो नहीं करते कि
उनकी मेमोरी को अपनी जिंदगी से उनके इम्पैक्ट को अपनी जिंदगी से इरेज करने का काम क्या है कि बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो यही है ना कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते इमोशनली, हम क्या कर सकते हैं। हमें जो चौथा टास्क है वो बिल्कुल इससे मुतालिक ही है, वो है कि कोई हमें ऐसे मीनिंगफुल तरीके तलाश करने पड़ेंगे अपनी जिंदगी में, जिसके जरिए जाहिर है एक तरफ हमने एक नई जिंदगी शुरू करनी है, हमने इन इन इररिप्लेसेबल किस्म के, और इन सम सेंस एवरी रिलेशनशिप इज इररिप्लेसेबल, तो उनके बगैर जिंदगी गुजारनी है, लेकिन हमने उनके साथ भी तो एक कनेक्शन अपना बाकी रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे वो मीनिंगफुल ताल्लुक बरकरार रख सकते हैं। आपने देखा इस तरह की एग्जांपल्स दैट फॉर एग्जांपल अ पेरेंट लॉस्ट अ चाइल्ड, और वो फॉर एग्जांपल दे लॉस्ट दैट चाइल्ड टू अ हाउस फायर फॉर एग्जांपल। तो वो आगे चल के वो एक ये वाला रोल संभालते हैं कि वो एक ऐसी चैरिटी शुरू करते हैं जो कि फॉर एग्जांपल ये वाली रेगुलेशंस जो कि प्रिवेंट कर सकती हैं ऐसी हाउस फायर्स को, उनके लिहाज से उनको तब्दील करने के एतबार से काम करना शुरू कर देती हैं। या ये हो जाता है कि वो उस लॉस्ट बच्चे के लिए कोई उसके बिहाफ पे कोई फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म चैरिटेबल चीज शुरू कर लेते हैं। ये तो बहुत उस तरह की चीजें ना जो कंक्रीट प्रोमिनेंटली नजर आने वाली हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एक एक तरीका उसका ये भी है कि जो हमारे लव्ड वन की बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत बेनिफिशियल किस्म की क्वालिटीज हैं, उनको हम अपने अंदर इनकलकेट कर लें। अगर अगर वो फॉर एग्जांपल दूसरों के लिए बहुत दूसरों की खिदमत करने में बहुत खुशी महसूस करते थे, और अब हम कोशिश करके वो वाला रोल अडॉप्ट कर लें, चाहे वो बिल्कुल हमारे लिए इमीडिएटली हमारी नेचर के मुताबिक ना आता हो, जिस तरह उनकी के मुताबिक आता था, उस तरीके से हम उनकी याद को अपनी एक नई जिंदगी के अंदर ऑनर कर सकते हैं। ये उनके साथ ताल्लुक बरकरार रखने का जो तरीका है अपनी नई जिंदगी में, ये इस तरह से किसी ना किसी सेंस में सामने आएगा। दूसरों के लिए ये चीज फैसिलिटेट करना किस तरह मुमकिन है, वन थिंग उसमें इस मेन डोंट आ जाएगा। वो डोंट ये है कि हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, हम एडवाइज नहीं कर सकते कि मैंने ये किया है तो तुम भी ये करो, मैंने ये किया था तो तुम भी ये करो। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि उनको मौका दें, और कि वो अपने तौर पर किस तरह ये वाला टास्क फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम किसी भी तरह की प्रैक्टिकल मदद, किसी भी तरह की इमोशनल और सोशल सपोर्ट जो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें। तो ये जो मैं मेथड्स ऑफ कोपिंग और डूज एंड डोंट साथ साथ करके बात कर रही हूँ, किसी तरह से इनकी सेंस है। कोई I see no response in chat, तो इसका मतलब है मैं इस खामोशी को क्या समझूं। कि किसी भी के ये सेंस नहीं बना रही या क्या हो रहा है। अच्छा, अगर इसको बिल्कुल रिव्यू कर दूं कि हाउ टू हेल्प अनदर ग्रीविंग पर्सन, डूज में जो चीजें आएंगी वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आएगा वो, क्योंकि हमने
दूसरे बंदे को भी जो हमारे सामने है, वो हमारे पेशेंट हो सकते हैं, हमारी फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको भी लॉस की हकीकत समझने में और फिर फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मदद देनी है, और उनकी जो एक जिंदगी है वो उसको असिस्ट करेंगे इसी तरह से कि वो उनके बगैर कैसे रहें, उनको मीनिंग फाइंड करने में उसी तरह से मदद देनी है जैसे हमें ज़रूरत है। उसी तरह हमें उनको वक्त देने की और उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने की ज़रूरत पेश आएगी जैसे हम अपने लिए तवक्को करते हैं। और बतौर डॉक्टर्स एक जो बहुत अहम चीज़ हो सकती है वो ये है कि हमने बात की थी ना कि कुछ बिहेवियर्स नॉर्मल हैं कि हम फॉर एग्जांपल हेलुसिनेटिंग, उस दौरान में वो विजुअल या ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो स्पेसिफिकली डिसीज के बारे में आती हैं, या बहुत ज़्यादा जो गिल्ट है उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में, या द विश टू जॉइन द डिसीज्ड इन देयर डेथ, तो ये वाली जो चीज़ है बतौर डॉक्टर्स हमें ये पहचानने की ज़रूरत पेश आएगी कि कहाँ नॉर्मल ग्रीफ की हुदूद ख़त्म होती हैं, कहाँ पे अब मदद लेने की ज़रूरत पेश आएगी, कहाँ हम अप्रोप्रिएट मदद के लिए खुद जाएं या किसी और को भेजें। तो सबसे पहले उसमें हमें कुछ ना कुछ साइंस हैं जो कि अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पेश आएगी। देखें, आम हालात में अगर हम जनरली देखें, कल्चरली देखें, तो जो शुरू के चंद हफ्ते होते हैं उसमें everything everything is about loss and grief. वो बहुत बहुत उदासी, रोना, रोजमर्रा की एक्टिविटीज से दूर होना, खाने पीने से, नींद में जो तब्दीलियां हैं, वो सारी की सारी चीजें, और एक इंतहाई ज्यादा प्रीऑक्यूपेशन विद द इमेज ऑफ द डिसीज्ड एंड योर ओन लॉस, वो मुस्तकिल बहुत शिद्दत की होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इवन दो द पेन इज स्टिल देयर, कुछ ना कुछ एक रोजमर्रा की फंक्शनिंग शुरू हो जाती है, और फिर एज द टाइम पासेस तकरीबन 6 महीने में इंसान बड़ी हद तक अपने रोजमर्रा के काम अंजाम दे रहा होता है, और तकरीबन बहुत ये मिनिमम सी ड्यूरेशन है, लेकिन तकरीबन साल भर में बंदा बड़ी हद तक इस काबिल हो जाता है कि वो अपने लव्ड वन की खुशगवार चीजें सोचे और उनको उस तरह से एंजॉय कर सके जैसे कि जब वो हुई थी, और प्रैक्टिकल लेवल पे बड़ी हद तक वो रोजमर्रा के काम जो कि वो अंजाम देते थे, अब उनको खुद संभालने के काबिल हो जाए। सही है, तो एक ब्रॉड सा ये वाला पैटर्न है। बट इफ फॉर एग्जांपल से this lasts and actually goes, जो शुरू का जो शिद्दत का सदमा है, वो वाली चीजें उसी शिद्दत से मुस्तकिल फॉर एग्जांपल साल, 1.5 साल, 2 साल बहुत अरसे चलती रहें, तो ये एक सूरत हाल होगी जहां मदद की जरूरत पेश आ सकती है। या ऐसा हो जाए कि ग्रीफ जो है वो बिल्कुल इनहिबिट हो जाए, यानी कि the loss happened but that subjective experience and that वो जो मॉर्निंग है वो बिल्कुल फॉलो नहीं की और बहुत अरसा हो गया है, तो ये वाली चीज हो रही है, ये किसी ना किसी तरह से ब्रेक डाउन की वजह बनती है। इफ दैट्स हैपनिंग, इट्स अ गुड आइडिया टू सीक हेल्प। तीसरी चीज, अगर अब क्योंकि शुरू का जो ग्रीफ का जो भी फीचर्स हैं सारे के सारे, वो डिप्रेशन से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है, तो हम कैसे पहचानें कि ये डिप्रेशन है और अब मदद की जरूरत है? उसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं। एक चीज, when we are going through grief, तो कई दफा ये लगता है कि it would be better off कि अगर हम हमारे loved one के साथ हों जो चले गए हैं। सही है, ये वाला ख्याल कि I want to join them in death, this is a feature of normal grief। लेकिन अगर ये इससे मुख्तलिफ हो, अगर suicidal ideation आ रही हो, जनरली आ रही हो, कोई एक्सप्रेस कर रहा हो या खुद आ रही हो, दैट्स द टाइम टू सीक हेल्प। अगर ऐसा हो रहा हो कि
मैंने बात की थी कि नॉर्मल मॉर्निंग में, नॉर्मल ग्रीफ में the guilt is around the circumstances of death. अगर उससे ज्यादा हो रहा है, अगर जनरली एहसास जुर्म और गुनाह हो रहा है, जैसे कि डिप्रेशन में होता है, आप अपने आप को छोटी छोटी माजी की उन चीजों के लिए ब्लेम करना शुरू कर देते हैं जो कि उस वक्त तो कोई खास अहमियत रखती भी नहीं थी, बहुत शिद्दत से एहसास जुर्म आ रहा होता है, वो वाली चीज अगर एक जनरल आ रही है, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रही, दैट दैट सजेस्ट्स डिप्रेशन, जिसका मतलब है मदद की जरूरत है। अगर अपने बारे में वर्थलेसनेस के और लो सेल्फ एस्टीम के आइडियाज आ रहे हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, पीछे रह गया हूँ, कमतर हूँ, ऐसे ख्याल आ रहे हैं, ये यूजुअली नॉर्मल ग्रीफ का फीचर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये डिप्रेशन को इंडिकेट करते हैं। सो इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं, सुसाइडल आइडिएशन आ रही है, वर्थलेसनेस के आइडियाज आ रहे हैं, जनरलाइज्ड गिल्ट आ रहा है, या फिर ये जो सारे फीचर्स हैं ये बहुत लंबे अरसे तक चल रहे हैं या शुरू ही नहीं हो रहे, इनहिबिट हो रहा है या बहुत डिले हो रहा है ग्रीफ का एक्सप्रेशन, इट्स अ गुड आइडिया टू सीक हेल्प। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है ऑफ अ मेंटल इलनेस और एक मेजर लॉस आया है, तो दैट वुड बी समथिंग जिसके ऊपर वी वुड नीड टू कीप एन आई कि कहीं ये जो द ट्रॉमा ऑफ द लॉस कहीं वो ट्रिगर तो नहीं कर रहा मेंटल इलनेस को, डिप्रेशन को, बाइपोलर डिसऑर्डर को, साइकोसिस को, किसी भी चीज को, ठीक है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो हेल्प की जरूरत पेश आएगी। हमें ये देखना पड़ेगा बतौर डॉक्टर्स भी कि पेशेंट्स आर प्रेजेंटिंग विद for example medically unexplained symptoms at for example a certain time every year, या वो बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तो ये हमें उस पे शायद ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि उस टाइम पे कोई ऐसी चीज हुई थी, कोई अनप्रोसेस्ड ग्रीफ तो उसके अंडरलाइन मौजूद नहीं है। हम अगर पेशेंट्स से उनकी जिंदगी के साइकोसोशल पहलू एक्सप्लोर कर पाए तो काफी दफा हम उनको हेल्प करने के या अप्रोप्रिएट हेल्प की तरफ रेफर करने के काबिल हो जाते हैं। अगर हमारे लिए हमारा ग्रीफ सिर्फ ये कर पाए कि हमारे अंदर ये अवेयरनेस जगा पाए कि ये जो लोग जिन लोगों को फ्यूचर में मैंने मदद देनी है वो इस तरह की कैफियत से गुजर सकते हैं और उन्हें जब मदद की जरूरत है तो उन्हें अप्रोप्रिएट मदद की तरफ रेफर ही कर दूं, तो दैट वुड बी एन अचीवमेंट। ये एक लाइक एक मेजर एरिया होगा ग्रोथ का जो कि इतने पेनफुल एक्सपीरियंस से इमर्ज कर सकती है। डोंट्स मैंने बहुत सारे बीच बीच में डिस्कस भी किए, लेकिन बोलने के एतबार से कुछ जो डोंट्स है ना, मैं क्विकली चाहूंगी कि वो मैं मुकम्मल कर लूं बिफोर फिनिशिंग इट ऑफ, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मैंने पेशेंट्स से और अदरवाइज भी अपनी लाइफ में लोगों से सुना है कि ये बहुत बहुत शिद्दत से अनहेल्पफुल होती हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ इनमें से कुछ चीजें सुनना कितना शिद्दत से तकलीफ दे होता है एट दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये किसी तरह से ये सजेस्ट करना कि आपको एग्जैक्टली पता है कि व्हाट अदर पर्सन इज फीलिंग। हमने ये बात की थी कि grief is individual in some sense. Yes, we do share some of the characteristics, लेकिन we don't know exactly how the other person feels. So that's one. एक जो चीज मैंने बहुत ज्यादा शिद्दत से पेनफुल नोट की लोगों के लिए, वो फॉर एग्जाम्पल अ मदर टेल्स मी कि she lost a child, or people say कि okay, don't worry about it, you would soon have another, इस तरह की बात जो कि बेसिकली उस लॉस को निगेट कर देती है। जैसे कि ये मुमकिन है कि वो एक बच्चा जो है उसको कोई दूसरा बच्चा उसको एग्जैक्टली रिप्लेस कर सकता है। दैट्स अ वेरी वेरी अनहेल्पफुल एंड पेनफुल थिंग टू यू नो से एंड हियर, इस तरह से। और जहां किसी ने आपसे एडवाइस नहीं मांगी, वहां पे के इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए, उसमें फौरी तौर पर मशवरे देना और ये कहना कि आपको ये करना चाहिए, मैंने ये किया था, ये एक मसला बन सकता है, ये बहुत ज्यादा बहुत पेनफुल है कि तो आप ये जरूर बता सकते हैं कि इस सूरत हाल में ये चीज
मेरे लिए हेल्पफुल हुई थी। लेकिन ये कहना कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी जो तकलीफदेह चीज बन जाती है। काफी इंसान को अपना गम इनवैलिडेटेड होता महसूस होता है। और जो सबसे बुरी चीज जो हम इस सूरत हाल में कर सकते हैं वो कुछ ना कहना है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि दिस इज रियली अनकंफर्टेबल, पेनफुल, स्पेशली अगर जो आपसे बात कर रहा है वो आपका फॉर एग्जांपल वो फैमिली या फ्रेंड नहीं है, वो पेशेंट है, ठीक है, और आप उसको उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहते। वो आपको बताता है कि ऐसा हो गया था कि ये जो पिछले हफ्ते में मैंने दवा इसलिए नहीं ली कि मेरे घर में किसी की वफात हो गई थी और मुझे वहां मैं पूरी तरह से उस गम में डूबा हुआ था। उस सूरत हाल में अगर आप बात बदल के फौरी तौर पे उनके अगले सिम्टम के बारे में बात करेंगे तो उनका वो इंतहाई पेनफुल चीज होगी टू हैपन। या खुद अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स की वजह से अगर आप किसी और के ग्रीफ के बारे में बात करें, आप टॉपिक बदल देते हैं, उससे हट जाते हैं। दैट्स अनदर वेरी पेनफुल थिंग। व्हाट यू कुड डू इंस्टेड इज कोई शेयर्ड मेमोरी इवोक कर लें, अगर इफ इट्स अ पर्सन नोन टू यू, तो कि हाँ याद है उन्होंने तब ऐसे, या कोई इस तरह की चीज जो कि उन्हें मौका दे कि वो बात कर सकें अदर पर्सन हुज इन फ्रंट ऑफ यू। या अगर वो पेशेंट हैं तो कम से कम एक्नॉलेज कर लेना कि यस I understand that you are going through a very difficult period in your life. I understand that this is very painful for you. ये सिर्फ इतना कर देना भी कुछ ना कहने से definitely बेहतर होगा. So on that note, I would like to end this presentation. Thank you very much for staying, for listening. ये topic ऐसा था कि कुदरती तौर पर मुझे ना बहुत आहिस्तगी से बहुत this is a topic जिसके बारे में किसी भी तरह से cheerful और खुशबाश किस्म की गुफ्तगू नहीं की जा सकती, इसकी नेचर ही ऐसी है। So if उस वजह से if I came across as like a super serious person तो और at times like not that engaging, तो उसके लिए माजरत। बहरहाल फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आखिर तक स्टे किए हैं यहाँ पे। और हम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये इस टॉपिक पर जो आपने गुफ्तगू की का मौका दिया है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बिलखसूस हमारे लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए who come across death all the time in our professional lives, हमारे लिए इसके बारे में सेंसिटाइज होना that's something very important. उसके लिए बहुत शुक्रिया। Jazakallah khair for being here, ma'am, and giving this great talk. We'll have our yes. Thanks a lot, ma'am, for joining us and delivering this session. You're welcome. It was great. Yes. Jazakallah. We'll have our second session tomorrow at the same time, and we'll look forward to meeting you. All right, Allah Hafiz. Allah Hafiz.